Hello friends, welcome back to my channel. So today we will study about the algae. ठीक है, तो algae हमारे पास क्या कह रहा है कि algae is a chlorophyll bearing obvious सी बात है because it is a green in the color, probably most probably green in the color, and they have some pigment chlorophyll A, B, C, D. We will see later on. They're simple because it is a thyroid because body is not differentiated into the true root stem and the leaves. Thyroid, that's why it is a simple, and thyroid that means also autotrophic because they have the chlorophyll, so they make their make their food by own self, and largely aquatic, both the fresh water and the marine water, right? And they occur in a variety of the habitat like the moist stone soil, etc., etc. And some they also occur with the association with the fungi that is lichen. In the previous chapter we have studied about the lichens and we are aware. And the animals के ऊपर भी होते हैं कौन कौन से, फॉर एग्जांपल ऑन द स्लॉथ बेयर के ऊपर भी हमारे पास एक एल्गी होता है जिसको दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द हैबिटेट ऑफ द एल्गी. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, जो इंपॉर्टेंट अगला लाइन है, कह रहा है द फॉर्म एंड साइज ऑफ द एल्गी इज हाईली वेरिएबल ranging from colonial to form volvox and the filamentous like Eurothrix and Spirogyra. क्या कह रहा है ये कि the form and the size of the algae is the highly variable. It could be the colonial. Colonial is a very important, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं. ठीक है, तो कॉलोनीज जो रहते हैं हमारे पास वो चीज़ क्या है, दैट इज volvox. And the filamentous in the form of filaments that we have the Elothrix and the Spirogyra. These two are the important multiple times it has been asked in the questions. अच्छा, उसके बाद हमारे पास कह रहा है दी एल्गी रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव. ठीक है, वेजिटेटिव मोड काइंड ऑफ फ्रेगमेंटेशन, वी कैन से दैट asexual रिप्रोडक्शन एंड द सेक्शुअल मेथड, मतलब तीनों ही मेथड इनके में अवेलेबल है. नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, द वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द fragmentation. As I have said earlier, the vegetative is the fragmentation. Each fragment develop into the thallus. ठीक है, some kind of regeneration type, which and true regeneration is seen in the area we have studied in the chapter 1 living world. अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि the asexual reproduction is by the production of various type of the spores. The most common being spore is the zoospore, and zoospore we have also seen in the case of the fungi when we are studying the kingdom fungi. In that case also we have studied that asexual spores in the fungi is can be produced by the zoospore. ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे. asexual reproduction by the most common being the zoospore, and the vegetative reproduction is by the fragmentation. Now we have the third mode of reproduction, that is the sexual mode of reproduction. So in case of sexual mode of reproduction, what we are having is that the flagellated, they have the flagellated motile. On germination they give rise to the motile. The sexual reproduction takes place the fusion of the two gametes, which is obvious, and they have the flagellated and the similar in size. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारे पास, आइसोगेमस नॉन मोटाइल एंड आइसोगेमस मोटाइल, इसी को नाम हमने पढ़ा तो पहले भी चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि व्हाट डज द आइसोगेमस एंड द ओगेमस मीन्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहे हैं कि the gametes can be flagellated or the similar. Flagellated it means they are the mobile या फिर movable, या फिर हम कह सकते हैं क्या इन द केस ऑफ टर्म ऑफ मोटाइल हो जाएगा. ठीक है, फ्लैजिलेटेड मीन्स मोटाइल. सिमिलर इन द साइज दैट रेफरेंस टू द किसको, आइसोगेमस. फिर में इन द साइज दैट रिटन हियर और आइसोगेमस. ठीक है, तो ये एग्जांपल है हमारे पास, आइसोगेमस नॉन मोटाइल एंड आइसोगेमस मोटाइल. The most frequently asked question is the isogamous non-motile, which is only in given NCERT is the Spirogyra. We will have to look at there. Um, where it is. The similar in the size, Eulothrix, and the non-flagellated is the non-motile, but in the similar in the size in the case of the Spirogyra. वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा हुआ है काफ़ी टाइम, मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे. तो आइसोगेमस नॉन मोटाइल मतलब कि नॉन मूवेबल. ठीक है, मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलर नहीं है उनके में. In that case we'll have the Spirogyra. And isogamous motile, that is the Eulothrix. इस चीज़ को याद रखोगे, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ आइसोगेमस, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्लस नॉन मोटाइल मतलब नॉन मूवेबल. वी आर हैविंग इज द, एक ही क्वेश्चन इसमें, मतलब और भी एग्जांपल हमारे पास हो सकता है, बट मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो मिला है ना आपको पीवाईक्यूज में मिल जाएगा, दैट इज द स्पाइरोगेरा. इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन में, रिसेंट भी पूछा हुआ है, आई थिंक 19 से 18 के ईयर में पूछा हुआ था ये. और उसके बाद आइसोगेमस मोटाइल कौन हो जाएगा, आइसोगेमस प्लस मोटाइल विच इज यूलोथ्रिक्स.
Again, they are which kind of, they have the filamentous form. Both of them are the filamentous form. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ बोथ ऑफ देम आर दी फिलामेंटस फॉर्म, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, फिलामेंटस फॉर्म है। ठीक है, ये दोनों के स्पाइरोगैरा एंड द यूलोथ्रिक्स दोनों के दोनों हमारे पास कैसे हैं, फिलामेंटस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि एसोगेमस एंड एसोगेमस एंड द oogemus एग्जांपल। अच्छा, अगला जो इंपॉर्टेंट हमारे पास है पूछता है oogemus किस में होता है, oogemus इन द वोल्वक्स एंड द फ्यूकस, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हमारे पास एनाइसोगेमस इन द स्पीशीज उडोरिना, अगेन हमारे पास एल्गी है, ये चीज़ हमारे पास डिसिमिलर इन साइज। बस ये आपको याद रखना, आइसोगेमस मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो आज क्वेश्चन है मैं आपने आपको बता दिया वो चीज़ ये है हमारे पास, एक आइसोगेमस नॉन मोटाइल, आइसोगेमस मोटाइल, ये पूछता है, काफ़ी पूछा हुआ है। मोड इनका कैसा होता है, फिलामेंटस होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। और अगला जो इंपॉर्टेंट लाइन पूछा हुआ है वो हमारे पास ओगेमस है। ओगेमस किस में होता है, वोल्वक्स एंड द फ्यूकस, फ्यूकस इज द ब्राउन एल्गी, वोल्वक्स इज द ग्रीन एल्गी। और वोल्वक्स कैसा हमारे पास है, तो कॉलोनियल मोड का है हमारे पास। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। फिगर भी दे रखा, अच्छा ये रखा, ये जो फिगर है ना यही हमारे पास कौन है, जो डायग्राम है ये वोल्वक्स की है। ठीक है, ये वोल्वक्स है, डॉटर कॉलोनी पेरेंट कॉलोनी, ये कॉलोनियल फॉर्म है, कॉलोनी से नाम भी है हमारे पास। ठीक है, ये कॉलोनी में रहते हैं, दैट इज हमारे पास वोल्वक्स है। ये हमारे पास कौन सा, स्पाइरोगैरा हो जाएगा। अगेन हमारे पास कैसा हो जाएगा, स्पाइरोगैरा, जो कि हमारे पास दोनों के दोनों हमारे पास कैसे हैं, ग्रीन एल्गी में, जो क्लोरोफाइसी, किसको बिलोंग करते हैं ये, क्लोरोफाइसी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ये चीज़। फिर उसके बाद ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो पेज है ना डायग्राम एनसीईआरटी का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो डायग्राम के पेजेस हैं ना, यहाँ से आप इसको याद रख लो, दिमाग में बैठा लो, सारे के सारे डायग्राम पूछे हुए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है। ये स्पाइरो वगैरह हो जाए, ग्रीन एल्गी, आपको ध्यान रखना है कि कौन ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ये सब आपको, ये सारे सारे जो चीज़ें हैं हमारे पास, ये सारे के सारे कैटेगरीज किसके हैं, ब्राउन एल्गी के हैं। ब्राउन एल्गी इज द फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी जो कि हमारे पास कैसा नाम है, फियोफाइसी। ठीक है, फिर उसके बाद नाम इसका क्या है हमारे पास, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया फ्यूकस डिक्टोटा, उसका नाम दे रखा होगा यहाँ पे, ब्राउन एल्गी लेमिनेरिया फ्यूकस डिक्टोटा नाम दे रखा है इनका, वो चीज़ नाम याद रखेंगे फिगर भी आइडेंटिफाई करने के लिए। और जो अंतिम वाला जो आता है ना हमारे पास, ये कैसा आता है हमारे पास, ये चीज़ है रेड एल्गी। ठीक है, ये हमारे पास कैसा है, रेड एल्गी, जो कि हमारे पास आता है कौन सा, रोडोफाइसी। ठीक है, ये पोरफायरा और ये पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, इस चीज़ का याद रखो, लेबलिंग भी याद रखना कि मेन एक्सिस यहाँ पे ये चीज़ क्या कह रहा है, ब्रांचेस यहाँ पे, फ्रॉन्ट्स मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो नाम है ना ये इंपॉर्टेंट है, फिगर भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, अगला जो हमारे पास आता है यहाँ पे, ये कह रहा है कि सिंस एल्गी आर द यूजफुल टू द मैन इन द वेराइटीज ऑफ द वे, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, हाफ ऑफ द टोटल CO2 fixation on the earth is carried out by the algae through the process of the photosynthesis, because they have the chlorophyll or they have the pigments, we can say that। अच्छा, being photosynthetic they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment, obvious सी बात है, photosynthesis होगा, प्रोसेस photosynthesis का प्रोसेस होगा तो ऑक्सीजन का रिलीज होगा, तो ऑक्सीजन रिलीज होगा तो एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या रहा, अगला जो इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास, दे प्लेज ए इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर्म बेसिस ऑफ द फूड साइकिल इन ऑल द एक्वेटिक फूड चैनल में, मतलब ट्वेल्थ में पढ़ेंगे दो तरह का फूड चैनल होता है, एक होता है GFC, एक होता है DFC। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्वेटिक वाले के लिए। अगला कह रहा है हमारे पास, मेनी स्पीशीज ऑफ द पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगैसम एंड आर द सेमेंटी स्पीशीज ऑफ द मरीन एल्गी। ठीक है, विच इज़ यूज्ड एज द फूड। ये इंपॉर्टेंट मार्क करने लायक है, यहाँ पे कह रहा है कि सिंस पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगैसम आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ द मरीन एल्गी विच इज़ यूज्ड एज द फूड। अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या हमारे पास है, जो कि हाइड्रोकोलॉइड, हाइड्रोकोलॉइड इज अ वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, किससे हमारे पास होता है, द रेड एंड द ब्राउन एल्गी। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल एल्जीन, ब्राउन एल्गी, सो ऑब्वियस ये हमारे बात है, कैरागिन इज रेड एल्गी, कॉन्ड्रोस क्रिस्पस हमारे पास इसका नाम हो जाता है। अगार, अगार इज अ वन ऑफ द प्रोडक्ट, agar is the one of the product which is used a commercial product for the obtained from the geranium and the gracilaria, geranium and the gracilaria is the red algae, उनसे अगार बनता, और अगार से क्या चीज़ बनता है, एक कमर्शियल प्रोडक्ट हमको मिलता है अगार, जो कि रेड एल्गी हमारे पास है। और इस चीज़ का किस चीज़ में ये यूज़फुल होता है हमारे पास, द यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ द आइसक्रीम एंड द जेलीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। ठीक, और किस किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं हमारे पास अगार, अगार हमारे पास जेरेडियम मुनक्रेसिलेरिया सप्टन होती है, ये कौन सी कैटेगरी वाले हैं, तो रेड एल्गी वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैंने रेड से मार्क कर दिया है। अच्छा, उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये कह रहा है हमारे पास कि क्लोरेला,
क्लोरा इज अगेन द एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है, रिच इन द प्रोटीन एंड यूज एज अ फूड सप्लीमेंट बाय द स्पेस ट्रैवल, ठीक है, क्लोरेला, स्पिरुलिना, दिस ऑल आर द एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज ध्यान रखने वाली बात है, कैसी एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है। किस तरह से, रिच इन द प्रोटीन एंड यूज्ड एज द डाइट सप्लीमेंट और द फूड सप्लीमेंट बाय द स्पेस ट्रैवलर। अगर स्पेस में जो ट्रैवलर जाते हैं तो सॉलिड फूड तो इंटेक नहीं करेंगे, ग्रेविटी हमारे पास कम होती है वहाँ पे, तो ग्रेविटी फ्री स्पेस वगैरह, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, क्लोरेला। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला आता है ना, पहला आता है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी इज द, क्या हमारे पास है, ये ग्रीन एल्गी, ठीक है, क्लोरोफाइसी इज नथिंग बट दी ग्रीन एल्गी। अच्छा, अगला हमारे पास क्या रहा है, यहाँ पे ग्रीन एल्गी नाम उसका हमारे पास है। फिर इसमें क्या था, दे कैन बी यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस हो सकते हैं। दे कैन बी ग्रीन बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट ए एंड क्लोरोफिल बी। याद रखने वाली बात क्या है हमारे पास, दे आर द डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड द बी, ये ध्यान रखने वाली बात है, पूछता है। अगला जो हमारे पास कह रहा है कि सिंस द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट, ओके, द क्लोरोप्लास्ट में भी, अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो शेप हो सकता है ना, वो होता है डिस्कॉइड, प्लेट लाइक रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप इन द डिफरेंट स्पीशीज। ये क्लोरोप्लास्ट की शेप एंड साइज वेरिएबल कर सकती है, वेरिएबल। अच्छा, इसमें कह रहा है मोस्ट ऑफ देम हैव द वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड द पायरिनोइड, पायरिनोइड लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। तो पायरिनोइड क्या है ना, हमारे पास एक स्टोरेज बॉडी होता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया पूरा का पूरा एक बॉक्स हो गया, अब उसके अंदर सब अंदर अंदर छोटे छोटे बॉक्स जो हो गए स्टोर करता है वो चीज़ को पायरिनोइड। पायरिनोइड में क्या होता है कि इनर प्रोटीन एंड आउटर स्टार्च। पायरिनोइड में क्या होता है ना, स्टोरेज बॉडी है जिसमें हमारे पास क्या होता है, इनर प्रोटीन एंड आउटर स्टार्च, ठीक है, पायरिनोड में होता है। ये कभी कभी कहीं कहीं पूछ लिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पायरिनोड कंटेन द प्रोटीन बिसाइड्स ऑफ स्टार्च, ये नहीं लिखा हुआ कि इनसाइड की आउटसाइड, बट मैंने आपको बता दिया कि इनर प्रोटीन एंड आउटसाइड स्टार्च, ठीक है। अब उसके बाद सब में दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है। अब उसमें कह रहा है दे हैव द रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ द इनर सेलुलोज एंड आउटर पेक्टोज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाला जो अगला वाला लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है हमारे पास, अलग कलर से मार्क कर दे रही हूँ, रिजिड सेल वॉल, ठीक है, दे हैव द रिजिड सेल वॉल, इनर सेल्यूलोज याद रखना है, एंड आउटर पेक्टोस पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस चीज को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, जो लाइन मैंने मार्क किया हुआ वो चीज इंपॉर्टेंट है। इसका क्लोरोफिल पूछते डोमिनेंस क्या होता है, फिर इसमें पूछ लेगा कि कौन कौन से शेप होते हैं डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट के, तो डिस्कॉइड, प्लेट रेटिकुलेट, कप शेप, रिबन, स्पाइरल, ये सब होते हैं। अच्छा, वन और मोर स्टोरेज बॉडी को क्या बोलते हैं, उनको पैरानोड। पैरानोड में क्या होता है, इनर प्रोटीन एंड आउटर स्टार्च, एंड द अदर वन इज द सेल वॉल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द इनर सेलुलोज एंड आउटर pectose. Pectose is nothing but the protein. अच्छा, vegetative its mode of reproduction is by the fragmentation or by the formation of the different kind of the spores. और हमने पहले ही देख लिया था, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है यहाँ पे चीज़, ठीक है। वेजिटेटिव asexual reproduction is by the formation of the flagellate zoospore, that is a motile in the zoosporangia, that is endogenous, हमने एल्गी वाले में, सॉरी, फंजाई वाले में पढ़ा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगेन तीनों ही सेम मिल सकते हैं हमारे पास, आइसो एंड आइसो एंड द ओगेमस। अगला इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हमारे पास, इनका नाम याद रखने वाला है, क्या क्या कौन कौन बिलोंग करता है, क्लेमाइडोमनास, वोल्वॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा एंड द कैरा, ठीक है। ये सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ है कि कौन कौन से किस में बिलोंग करते हैं, या फिर पाँच छह नाम दे देगा और आपको कैटेगराइज करने पड़ेंगे, हाउ मेनी ऑफ देम बिलोंग टू द क्लोरोफाइसी और ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी एंड वट एवर दैट इज आस्क्ड, ठीक है। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ लाइन है, थोड़ी थोड़ी लाइन है, ये सब चीज़ सबको याद रखनी है। नेक्स्ट था हमारे पास फियोफाइसी। फियोफाइसी इज द ब्राउन एल्गी, ठीक है। फियोफाइसिस द ब्राउन एल्गी, इसमें क्या रहा, मेजरली यहाँ पे कहाँ पाया जाता है, तो मराइन हैबिटेट में। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इन जनरल तो हमारे पास एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक में जो होता है ना, किसी किसी का पर्टिकुलर होता है, जैसे कि हमारे पास ग्रीन एल्गी थी, तो ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर मरीन वाटर दोनों में पाया जाता है, बट मोस्टली फ्रेश वाटर में। ये चीज़ यहाँ पे क्या है, फियोफाइसी इज द मोस्टली प्राइमरली, मतलब कि मोस्टली कहाँ पे होता है, मरीन हैबिटेट्स में। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट, दिस शोज द ग्रेट वेरिएशन इन द फॉर्म एंड द साइज। क्यों, क्योंकि हमारे पास दे रेंज, काफ़ी इनके में से रेंजेस आते हैं। जेरेम सिंपल ब्रांच्ड filamentous form is the ectocarpus, again is a और profusely branch that is 100 मीटर kelp एग्जांपल हमारे पास ब्राउन होने का 100 मीटर तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो काफ़ी फॉर्म्स हैं, साइज के पहले पहले भी हमारे पास एंटर में भी लिख रखा है, तो उनके साइज फॉर्म वेरिएशन में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ब्रांच भी हो सकता है, सिंपल ब्रांच, फिलामेंटस, एक्टोकार्पस, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, काफ़ी लंबे 100 मीटर तक केल्प, ब्राउन एल्गी, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये वाला जो नाम है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये शख्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केल्प पूछता है, ठीक है। 100 मीटर की दूरी तक काफ़ी प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है अगला जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो हमारे पास इनकी पिगमेंट्स पे सवाल पूछता है, तो पोजेस क्लोरोफिल A C, काफ़ी प्रिडिक्टेबल है, ठीक है। मैं बता रही हूँ, पहले AB, फिर AC, फिर AD,
ठीक है, ए सब में कॉमन है, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ठीक है, पहले क्लोरोफिल जो ग्रीन एलगी होगा उनके में ए बी, फिर उसके बाद ब्राउन एलगी ए सी, और जो रेड एलगी आएंगे उनके में ए डी, मतलब इन जनरल। और उसके पास अपार्ट फ्रॉम दैट दे विल हैव आल्सो हैव द कैरोटेनॉइड एंड द ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल के अगेंस्ट में हमारे पास इनके पास क्या होगा, फ्यूकोजैंथिन। ठीक है, फ्यूकोजैंथिन भी इनके पास होता है। अच्छा, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट लाइन जो हमारे पास है ये कह रहा है कि दे वेरी इन द कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ द ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ xanthophyll पिगमेंट एंड द फ्यूकोजैंथिन। ये इंपॉर्टेंट है, फ्यूकोजैंथिन की वजह से इनका जो कलर होता है ना वो कैसा होता है, ब्राउन होता है, पेक्यूलियर कलर देता है हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। अगला हमारे पास कह रहा है कि दे स्टोर द फूड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और दी मैनिटोल। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखने के लिए। उनमें पहले ग्रीन एल्गी में क्या था हमारे पास, वो पैरानोइड बॉडी वहाँ पे रखते थे। इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल किस चीज़ में हमारे पास है, फूड इज स्टोर इज अ लेमिनेरिन और द मैनिटोल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहा है द वेजिटेटिव सेल्स हैव द सेलुलोजिक सेल वॉल यूजुअली कवर्ड आउटसाइड बाय द जिलेटिनस कवरिंग ऑफ द एल्जीन। जो वेजिटेटिव सेल्स होंगे हमारे पास अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द सोमैटिक सेल्स को हम ह्यूमन में सोमैटिक कहते हैं, प्लांट्स में वेजिटेटिव सेल बोलेंगे। तो उनके पास ऑब्वियस सी बात है सेलुलोजिक सेल वॉल होते हैं हमारे पास। और वो सेलुलोजिक सेल वॉल एक आउटसाइड जिलेटिनस कवरिंग होती है जिसमें एल्जीन होती है, एल्जीन की कवरिंग। और हमने पढ़ा था अभी ऊपर में कि एल्जीन क्या होता है हमारे पास, एक कमर्शियल प्रोडक्ट हमारे पास इस्तेमाल करते हैं, और जो कि किससे मिलता है, ब्राउन एल्गी से। उसके बाद अगला हमारे पास कह रहा है कि दे हैव द सेंट्रली लोकेटेड, इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, दे हैव द सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड द न्यूक्लियस है। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर यूट्रिकल। इसका नाम एक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रिमोडियल यूट्रिकल। आपने ध्यान दिया होगा पिछले वाले चैप्टर में डाई आइटम्स में मैंने नोट्स में उसमें दे रखा था, इसमें भी वही ये चीज़ आपको टर्म मिला होगा। ठीक है, तो ये चीज़ कॉमन होता है कि इसमें डाई आइटम्स में और द ब्राउन एल्गी में। क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था शायद, आई थिंक नीट में नहीं पूछा हुआ पर किसी टेस्ट सीरीज में पूछा हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, तो इनमें जैसे जैसे इनका जिसके पास ऐसा अरेंजमेंट होगा ना, सेंट्रल लोकेटेड वैक्यूल, सेंटर में प्लांट्स में ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर 90% जो प्लांट का वॉल्यूम होता है वो वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रीमोडियल यूट्रिकल्स है। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं दे हैव द होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट मतलब कि पैर, पैर वाला जो स्ट्रक्चर हमारे पास पैर है, लेग्स है, दे इसके पास होल्ड फास्ट है टू स्टिक टू द और अटैच टू द सबस्ट्रेटम। होल्ड फास्ट पहला चीज है। दूसरा स्टेप, स्टिप इज अ लीफ लाइक फॉर द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन एंड द स्टिप इज अ स्टॉक सॉरी एंड द लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन विच इज एट द फ्रंट। ऊपर फिगर में लेबलिंग में दिया हुआ था। अगेन सेम हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल बाय द बाइफ्रिजिडेट जूस्पोर। अगेन यहाँ पर ध्यान रखने वाले क्या बात है यहाँ पे कि जो यहाँ पे बाइफ्रिजिडेट जूस्पोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द बाइफ्रिजिडेट जूस्पोर हो जाएगा। ठीक है, अगर चीज। और फिर उसमें कहता है सिंस दे गैमीट्स आर दी पेयर शेप और पायरिफॉर्म एंड दे हैव द टू लिटरली अटैच्ड फ्लैजेला। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यहाँ पे कि सिंस वाइफ फ्रिजिडेट जूस्पोर दे हैव द टू फ्लैजेला अनइक्वल। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या, दे हैव द टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला। इनके में जो फ्लैजेला था हमारे पास ना, उनके पास क्या था, जो क्लोरोफाइसे थे इनके पास 2 to 6 सॉरी फ्लैजेला। ठीक है, जो कि हमारे पास इक्वल और एपिकल थे हमारे पास। ठीक है, इक्वल और प्लस एपिकल थे। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास ब्राउन एल्गी है उनमें कैसी है, टू दो, टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड। ठीक है, दो इनके में है और ऊपर वाले में 2 to 6 है और नीचे वाले में है ही नहीं, रोडोफाइसी में। ठीक है, काफी प्रेडिक्टेबल, बहुत आसानी से। क्लोरोफिल ए बी ए सी ए डी, और फिर उसके बाद फ्लैजला में ऊपर होते हैं, क्लोरोफिल में हमारे पास इक्वल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोकोन्ट फ्लैजला भी कहते हैं। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इनमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि दे हैव दी आइसोकोन्ट फ्लैजला। ठीक है, आइसोकोन्ट फ्लैजला, ये सब नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आइसोकोन्ट फ्लैजला क्यों, क्योंकि दे हैव द टू इक्वल या फिर टू भी नहीं, इक्वल फ्लैजिला होते हैं हमारे पास। ठीक है, 2 to 6 नंबर वेरी करता है अलग अलग स्पीशीज में। मैं यहाँ पे लिख दे रही 2 to 6 फ्लैजिला होता है जो कि वेरी करते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं किसके, फियोफाइसे में क्या होता है, टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। इनमें दो ही होता है, सब में फिक्स है इनका, इनका जो हमारे पास रीच नंबर है ना वो फिक्स है, दो होता है हमारे पास। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसे केस को हम बोलते हैं हेट्रोकोन्ट फ्लैजिला, हेट्रोकोन्ट फ्लैजिला, जो कि अनइक्वल होते हैं हमारे पास। ये चीज़ कह रहे हैं ना यहाँ पे, अनइक्वल। ठीक है, अब उसके बाद सेम ही चीज़ हमारे पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसो एंड आइसो एंड द oogamous यूनियन ऑफ द गैमीज। ये अगला इंपॉर्टेंट लाइन हमारे पास है कि यूनियन ऑफ द गैमीट्स टेक्स प्लेस इन द वाटर और विद इन द ooganium इन द ooganium स्पीशीज। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास एक्वेटिक होते हैं हमारे पास प्राइमरली मरीन वाले फॉर्म में।
अच्छा, यहाँ पे अगला जो गाइमेंट्स द पायरिफॉर्म पेयरशिप एंड बेयर्स द टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। एग्जाम्पल हमारे पास याद रखने वाले इंपॉर्टेंट है, काफी सब में हमको एग्जाम्पल होना काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है एग्जाम्पल, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को नाम दे देगा, 10-12 नाम देगा, आपको आइडेंटिफाई करना, कैटेगराइज करना पड़ जाएगा कौन किस क्लास को बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेड एल्गी। रेड एल्गी इज द रोडोफाइसीन। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ है हमारे पास, इनमें तो पहले बात हमारे पास क्लोरोफिल का जो पिगमेंट हो जाएगा वो कौन सा जाएगा, ए और डी। अपार्ट फ्रॉम देन मतलब हमारे पास ए और डी तो होंगे ही, और उसके बाद अपार्ट फ्रॉम ए और डी के अलावा उनके पास क्या होगा, रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी विच मेक देयर बॉडी रेड। ठीक है, ये चीज़ का हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास कह रहा है अगला जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो कह रहा है हमारे पास मरीन एल्गी ये भी होता है विद द ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन द वार्मर एरिया। ठीक है, ये भी मरीन ही होते हैं बट इनका जो ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन होता है वो वार्मर एरिया में होता है। फिर उसमें कहते हैं अकर इन द बोथ वेल लाइट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड ऑल्सो इन द ग्रेट डेप्थ ऑफ द ओशन वेयर लिटिल लाइट पेनिट्रेट, इनका ऑक्यूपेशन के बारे में। फिर उसके बाद रेड थैलस मोस्ट ऑफ देम आर द मल्टी सेलुलर। ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये अगला इंपॉर्टेंट, दे हैव द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रेड एल्गी में होता है। ठीक है, दे हैव द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दे स्टोर द फूड इन द फ्लोरिडियन स्टार्च, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये फूड का पूछता है, क्लोरोफिल का पूछता है, फिर उसके बाद फ्रेजिला के बारे में पूछ लेगा, उसके बाद समवेयर कहीं ऑक्यूपेशन के बारे में पूछ लेता है, इनका मराइन में होता है या फिर फ्रेश वाटर में या दोनों में ही होता है, और फूड वाला ये चीज पूछता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लोरीन स्टार्च एंड वेरी सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन एंड द ग्लाइकोजन इन द स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन, इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। अच्छा, उसके बाद कह रहा है हमारे पास सेम ही चीज यहाँ पे भी है, एसेक्सुअल बाय द वेजिटेटिव बाय द फ्रेगमेंटेशन एंड द एस दे हैव द एसेक्सुअल बाय द नॉन मोटाइल स्पोर, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, नॉन मोटाइल स्पोर ये ध्यान रखने वाली बात क्यों है, क्योंकि हमने पहले ही देखा इनमें क्या है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द फ्लैजिलेटेड स्टेज, इनमें कोई फ्लैजिला ही नहीं होता है। हमने देखा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, पहले 2 to 6, फिर उसके बाद 2, इसके में है ही नहीं। तो ए सेक्सुअली बाय द नॉन मोटाइल एंड द सेक्सुअली बाय द नॉन मोटाइल, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि आगे कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द फ्लैजिलेटेड स्टेज, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड स्टेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को कंप्लीट एब्सेंस, फ्लैजिला होता ही नहीं है इनके, इसीलिए इनके पास क्या होता है, नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स एंड सेक्सुअली बाय द नॉन मोटाइल, अगेन सेक्सुअली भी नॉन मोटाइल होता है हमारे पास, oogamous टाइप का। ठीक है, नॉन मोटाइल गेमेट्स एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें नाम दे रखा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द oogamous, याद रखेंगे। इसके पहले दोनों में क्या था, तीनों चीज था, आइसो इनैसो एंड द oogamous, एंड oogamous के बाद accompanied by the post fertilization development। एग्जाम्पल हमको याद रखना है इसमें, एग्जाम्पल हमारे पास इंपॉर्टेंट पूछता है हमारे पास, तो पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जेलेडियम एंड द ग्रेसिलेरिया, जिससे हमको अगार मिल रहा था, वो चीज प्रोडक्ट जो मिल रहे थे हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज जो हमारे पास मेन जो था ना हमारे पास, वो इतना इतना था, इतना ही काफी है एनसीईआरटी इस चीज, इस चैप्टर के लिए, एल्गी के लिए इतना जितना है वो चीज काफी। और ये चार्ट दिख रहा है ना आपको, टेबल दिख रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समराइज करने में, पढ़ लोगे तो समराइज करने में काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे देख लो क्या चीज कह रहा है, एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ। ये कह रहा है क्लोरोफाइसिन मतलब ग्रीन एल्गी, कॉमन नेम इनका है। क्लोरोफिल ए बी यहाँ पे है, क्लोरोफिल ए सी है और क्लोरोफिल ए डी है। ठीक है, ये चीज़ों में तो हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके पास क्या चीज़ है, फ्यूकोजैंथिन है, जो कि हमारे पास क्या इनके रिस्पॉन्सिबल है इनके ब्राउन कलर के लिए। फिर उसके बाद इनके पास फार्कोइरिथ्रिन है, किसके लिए, हमारे पास इनके रेड कलर के प्रेजेंस के लिए। फूड स्टोर इनका स्टार्च में मैनिटोलैमिनेरिया एंड द फ्लोरिन स्टार्च, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल इनका सेलुलोजिक होता है, इनका सेलुलोज और एल्जीन का होता है। हमने देखा था कि उनके जिलेटिन जो कवरिंग था, कोटिंग था हमारे पास, वो जिलेटिनस कवरिंग होता है फियोफाइसिन में, वो किस चीज़ का होता है, एल्जीन का होता है हमारे पास ब्राउन एल्गी में। सेलुलोजिक होता है सेल वॉल, पेक्टिन, पॉलीपेक्टिन और सल्फेट पॉलिएस्टर का होता है चीज़। अच्छा, नंबर ऑफ फ्लैजिला 2 to 8 इक्वल एपिकल, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोकोंट। यहाँ पे एक दे रही हूँ, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोकोंट फ्लैजिला। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, 2 अनइक्वल लेटरल मतलब कि हेट्रोकोंट फ्लैजिला। और इसके में तो है ही नहीं, तो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द फ्लैजिलेटेड एसेंस। ठीक है, कंप्लीट एब्सेंस हो जाएगा हमारे पास, एब्सेंस ऑफ द फ्लैजिला। ठीक है, तो काफ़ी इतना ही जो टेबल में जो दे रखा है ना, वही चीज़ पूछता है मैक्सिमम, हमारे पास यही चीज़ पूछता है हमारे पास, आइसोकोन, हेट्रोकोन एंड दी ये चीज़। और उसके बाद कभी कभी समवेयर आपको पूछ लेगा ब्रैकिश वाटर, तो सब में यही चीज़ हमारे पास है। तो यहाँ पे देख लेना, रेयर जो होता है ना फ्रेश वाटर में रेयर है ब्राउन, क्योंकि मोस्टली हमारे पास हमने पहले देखा था मरीन फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद फ्रेश वाटर में सम होते हैं, और मोस्टली हमारे पास कैसे होते हैं, सॉल्टी वाटर में, और प्रिफरेबली टू दी वार्मर रीजन।
ठीक है? तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। बाकी हमारे पास एल्गी में और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्गी के लिए एनसीईआरटी लेवल काफ़ी, आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, आप इस डायग्राम को देखोगे अच्छे से। सारे डायग्राम को देखो, ये किसका नाम है, ये नाम के साथ याद रखोगे। नाम रखोगे प्लस उसके बाद लेबलिंग याद रखोगे कि क्या चीज़ कहाँ पे लेबल है। ये फ्रंट हमने लीफ लेकर फॉर द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, स्टाइप इज़ द स्ट्रिप हो जाएगा, होल्ड फास्ट फॉर द अटैच टू सबस्ट्रेटम, फंक्शन उसमें दे रखा है। एयर ब्लैडर यहाँ पे किस चीज़ के लिए, तो फॉर प्रोवाइडिंग बायोन्सी। फ्रंट लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मिड रिब इज दैट जो डिवाइड कर रहा है, होल्ड फास्ट अगेन फॉर द स्टार्टअप के लिए, स्ट्रिप इज द स्ट्रिप दैट फ्रंट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर द फोटोसिंथेसिस। एंड अगेन इज द हमारे पास ये पोरफायरा हो जाएगा, हमारे पास किसका है, ये रेड एल्गी का है पोरफायरा। फ्रंट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये दैट इज अ पॉलीसाइफोनिया, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, पॉलीसाइफोनिया हमारे पास है, किस चीज़ का हमारे पास है, रेड एल्गी है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, इसका नाम याद रखेंगे। तो इन जनरल हमारे पास अब यहाँ पे क्या होता है ना, ग्रीन एल्गी जो था चैप्टर, आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना, ये चैप्टर जो है पूरा एनसीईआरटी के अराउंड ही चलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में आप ये सब चीज़ पढ़ लोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग का हो जाएगा ये चीज़। प्लांट किंगडम इन जनरल इंट्रोडक्शन तो हमने पहले ही आपको दे रखा था। अब यहाँ से एल्गी सामने पड़ा, एल्गी में जो चीज़ मैंने मार्क करवा रखा है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन पूछता है आइसोगेमस नॉन मोटाइल स्पाइरो वगैरह, यही क्वेश्चन पूछता है, अब इस चीज़ को याद रखोगे, बस इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। आइसोगेमस नॉन मोटाइल स्पाइरो वगैरह फिलामेंटस फॉर्म होते हैं दोनों के दोनों, यूरोथ्रिक्स और ये चीज़। ठीक है, अगला हमारे पास ये चीज़ है, हमारे पास हमने पढ़ा कि उसके क्लासिफिकेशंस को पढ़े, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, जो चीज़ मैंने मार्क कर रखा है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी सब जो एडिशनल चीज़ों का एडिशनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में। एनसीईआरटी तक यहाँ इस वाले चैप्टर में एनसीईआरटी तक इस टॉपिक में एटलीस्ट मैं तो नहीं रेफर करूंगी कि आप नोट्स पढ़ो एक्स्ट्रा चीज़ें, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें इसी में से पूछती है और काफ़ी प्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं, अच्छी ईजी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ड्राई सेल्स। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ो।